This क्या है? is a colt called the Terminator. He's sired by Arbud. He's just won his first show. He came third at Akluz a few days ago. यस है जो जी। घोड़े वाली ऑडियंस नहीं है, जी। दिल बी लिटिल कंफ्यूज, कोल्ड क्या है, फोल क्या है, Okay. स्टैलियन तो बताइए। Okay. हाँ, So let's give the knowledge. घोड़ों में जब बच्चा 1 साल के पहले होता है तो वो नर हो या मादी हो उसे फोल कहते हैं, और 1 साल के बाद आप उसे कोल्ट या फिली बोलो। 28 महीने से लेके 34 महीने तक घोड़ा दांत लगा 2.5 साल में, 2.5 साल में लगभग दांत लगाते, तब उसे टू टीथ कोल्ट या टू टीथ फिली कहा जाता है। ये अदंत है। सो हिंदी में इसे अदंत वसेरा कहेंगे। इंडिया में सारे रिंग्स जो होते हैं वो अदंत होते हैं, 2 दांत होते हैं या मेयर स्टैलियन होते हैं। सो दोज आर द प्राइमरी रिंग्स। हालांकि अभी एक जो शो हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अक्लूज के शो में सेकंड टाइम, पिछले साल भी उन्होंने किया था, उन्होंने एक ब्रीडर्स कप रखा था where you have to bring the mare। आपको माँ और बच्चा साथ में अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हो। उसे हॉलो बैक या स्वे बैक कहते हैं। so it's a वो flaw। बहुत डिफेक्ट No, है it can कि be नहीं? both. So I'll tell you what happens when you look at the back. So wither, now this horse is growing, अभी growth stage में। wither और पुट्ठा अभी लेवल है, कभी उसका पुट्ठा ऊपर जाएगा, कभी wither ऊपर जाएगा। ओके, ये अगर आप सही बोल रहे थे आप, अगर आप जल्दी राइडिंग करोगे या बहुत ज्यादा लंबा बैरल है घोड़े का तो ऑब्वियसली वो स्वे हो जाएगा। अच्छा, what is the appropriate weight of a person Of to a ride a rider? horse, of a rider? So a very dear friend of mine, Rohan More, runs Japaloop, where they don't allow anybody over, I think, 85 kilos to ride. आप जो है अभी भी जजिंग करते हो कई जी। शोज की, राइट? जी। कितने शोज आपने जज किए अब तक के? बहुत सारे। How do you go prepared? And second, what do you judge a horse on? That's a very vast topic, Fahad bhai. Hoof taking. I start with the hooves. I then move up. He's got a decent heel. He's got a well-rounded hoof. You look at the front. He's balanced on his feet, as we call it. On his hooves, he's a well-balanced animal. सारंगखेड़ा में last time they were joint winners. I'll tell you the reason behind that, Fahad bhai. So when you judge objectively with points, this is something very important. I would like to touch upon this topic actually. क्या होता है? Why there is no transparency in voting system? No, but I mean, जो judges score कर रहे हैं, let the public see ना भाई। so Fahad क्या bhai, point पे क्या score Fahad दिया है bhai, आप लोगों ने? there are 3 shows now in Maharashtra. The Baramati show, Akluz show, Iowa show, and hopefully there'll be a 4th. I'm not at liberty to talk about it yet. Been a judge in quite a few shows. Yep. So being a judge, you have made more friends or enemies? Enemies. Yeah. Definitely enemies. Yeah. Boss. वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। रेनेगेड हॉर्सेस पर हूँ मैं पुणे में विद केशव जोशी। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? Good afternoon, Fahad bhai. केशव Fine, thank भाई, you. फर्स्ट हॉर्स वाज वेरी गुड, जी, द सेकंड वन इज नो लेस। जी. व्हाट डू वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस नाउ? This क्या है? is a colt called the Terminator. He's sired by Arbud और इसकी माँ लक्ष्मी है। ये हमारी जो घोड़ी है गोल्डन, जो बहुत सारे शोज जीती है, उसका सगा छोटा भाई है, और ही इज कोन्ड बाय मी एंड विराज बालवड़कर, हेलो सर। and he is now 22 months old. He's just won his first show. He came third at Akluz a few days ago. Oh, congratulations. Thank you. We're very, very proud. Terminator Which line? resembles his sire, who's Arbud. Arbud. Arbud was by Tufan, Okay. but he, I believe, is a very close copy of his sire. He has all the desired traits that his sire had, and there were a few places where his sire was lacking, which the dam has made up for. Okay. तो हालांकि ये मेरी ब्रीडिंग नहीं है, ये सचिन भाऊ जगताप की ब्रीडिंग है, पर ये दिस इज अ हॉर्स दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी। फिलहाल अभी कितना साल का है? 2 साल? 2 साल का हो जाएगा 15 जनवरी को, 15th of January. हमारी जो ऑडियंस है, जो जी। घोड़े वाली ऑडियंस नहीं है, जी, दिल बी लिटिल कंफ्यूज, कोल्ड क्या है, फोल क्या है, ओके। स्टैलियन तो बताइए। ओके, हाँ, सो let's give the knowledge. घोड़ों में जब बच्चा 1 साल के पहले होता है तो वो नर हो या मादी हो उसे फोल कहते हैं। FOAL, FOAL, फोल। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बच्चा, बछेरा, बच्चिया, बछेरा। हाँ, बचेरा, बछेरा। बछेरी बोलते हैं। जब वो 1 साल के बाद हो जाता है तो उसे ईयरलिंग कहते हैं इंग्लिश में। 1 साल से कब तक? 1 साल के बाद ईयरलिंग कहेंगे उन्हें। ओके। अराउंड दैट एज दिल बी ईयरलिंग्स, बट 1 साल के बाद बच्चे को, सॉरी आई अपोलोजाइज,
ईयरलिंग विल बी बिफोर दैट, ओके और 1 साल के बाद आप उसे कोल्ट या फिली बोलोगे. नहीं आई एम कंफ्यूज्ड With फोल 1 साल के पहले जो भी है उसको फोल ही बोलोगे. फोली कहेंगे. नर है मादी है उसको फोल, पोनी नहीं कहोगे. पोनी अलग होता है टोटली. ओके वो तो पोनी छोटी यानी height का छोटा होता है. घोड़ा है. जी जी जी. अभी ये 1 साल के पहले हम इसे फोल कहते थे. फोल कहते थे. 1 साल के बाद हम इसे कहेंगे कोल्ट, क्योंकि ये नर है. अगर ये मादी होती तो इसे फिली कहते. ओके और जब ये 2 दांत लगाते हैं, कितने साल में? 28 महीने से लेके 34 महीने तक घोड़ा दांत लगा 2.5 देता है. साल में. 2.5 साल में लगभग दांत लगाते, तब उसे 2 टीथ कोल्ट या 2 टीथ फिली कहा जाता है. ओके ओके. उसके बाद जब वो पूरा दांत लगा देता है अपना, कितने दांत होते हैं इनके? आगे के शुरुआत के 2 दांत 2 आए तो लगाते cold. हैं, फिर 4 लगाते हैं, फिर छकड़ी लगाते हैं टोटल. सो इट बिकम्स अ कोल्ट व्हेन इट्स 24 मंथ्स, व्हेन इट्स 12 मंथ्स ओल्ड. ओके तो 2 दांत आ जाते हैं तब? नहीं 2 दांत आएगा 28-30 महीने को, में. तब वो Okay. 2 दांत कोल्ट बनेगा. 2 टीथ कोल्ड. हाँ, सो बिटवीन फोल एंड 2 टीथ कोल्ट इज कोल्ट. ओके सो आफ्टर 1 ईयर 2 दांत लगाने तक वो कोल्ट कहलाएगा. Okay. अगर नर होगा फिली और 2 टीथ फिली. ओके. और उसके बाद वो पूरा जब ग्रो हो जाएगा तो स्टैलियन या मेयर. कितने साल का होता है वो? यूजुअली रिंग्स के लिए 4.5 साल के बाद घोड़े दांत लगा देते हैं पूरे. 40-48 मंथ्स के आसपास उनका केनाइन टूथ जो आता है या 4 दांत हो जाते हैं. अभी इसके अब दांत ये दिखाएगा नहीं, पर ये अदंत है. सो हिंदी में इसे अदंत वसेरा कहेंगे. ओके तो अदंत बच्चा है ये. सो 4.5 साल लगता है इनको प्रॉपर जवान होने. हाँ जी, पूरी ग्रोथ होने में. 5 कुछ लाइंस है उनमें 6-6, 7-7 साल भी लगते हैं. थोड़ा लेट मैच्योरिंग लाइंस होते हैं. और जी जी ये सो अभी रिंग्स की वजह से ये एजिंग होती है. तो इंडिया में सारे रिंग्स जो होते हैं वो अदंत होते हैं, 2 दांत होते हैं या मेयर स्टैलियन होते हैं. सो दोज आर द प्राइमरी रिंग्स. हालांकि अभी एक जो शो हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अक्लूज के शो में, सेकंड टाइम, पिछले साल भी उन्होंने किया था. उन्होंने एक ब्रीडर्स कप रखा था where you have to bring the mare. आपको माँ और बच्चा साथ में अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हो. और हमारे बहुत अजीज दोस्त है समीर राठी जी और धीरज भैया देशमुख साहब, उनके यहाँ का घोड़ा परसों ही जीता ब्रीडर्स कप. सो इट्स गुड दैट breeders are getting recognition now and not just the categories that I mentioned before. ओके इसका नाम क्या बताया आपने? इसका नाम है टर्मिनेटर. टर्मिनेटर नाम है. हाइट फिलहाल कितनी है? फिलहाल इसकी 60.5 और 61 के बीच में हाइट है, और ये रियल हाइट है. और ये घोड़ा मेरे हिसाब से 64 के करीब जाना चाहिए. कितने साल तक की इनकी हाइट? इस 5 साल तक बढ़ेगा. वी विल नॉट राइड हिम till he's at least 5. So he has full chance of getting physiologically matured before we saddle him. बाकी ग्राउंड वर्क तो चालू है, इसका हैंड वर्क ग्राउंड वर्क चालू है. तो कब सैडल डालोगे आप? कितने साल? सैडल 5 साल. 4.5 साल के बाद सैडल डलेगा, 5 साल के बाद राइडर बैठेगा उसके ऊपर, तब तक नहीं. मैंने पुष्कर में कोई घोड़ी कवर किया था जी. उसका जो बैक है, हाँ, स्वे बैक थी. मैंने आपकी वो वीडियो देखी. और किसी ने कहा कि बहुत अर्ली एज में राइड, किसी आदमी ने आपको शायद आप ही के वीडियो में बोला कि ये काठियावाड़ी ब्रीड की एक कैरेक्टरिस्टिक है. वो झूठ बोल रहे थे आपसे. उसे हॉलो बैक या स्वे बैक कहते हैं. So it's a flaw. बहुत डिफेक्ट No, है. it can be both. So I'll tell you what happens when you look at the back. The withers, now this horse is growing, अभी growth stage में. Wither और पुट्ठा अभी लेवल है. कभी उसका पुट्ठा ऊपर जाएगा, कभी विदर ऊपर जाएगा. ओके ये अगर आप सही बोल रहे थे आप, अगर आप जल्दी राइडिंग करोगे या बहुत ज्यादा लंबा बैरल है घोड़े का, तो ऑब्वियसली वो स्वे हो जाएगा. पर वो फॉल्ट है. और हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं वो सैडल की जगह पहले के घोड़ों में आता था. भाई ये सब बातें हैं. हॉलो बैक हॉर्सेस बहुत सारे हैं. हॉलो बैक एकदम यू शेप में उनकी पीठ होती है, उसको कहते हैं हॉलो बैक. दैट इज अ मैसिव फ्लॉ. ओके ओके दैट इज नॉट समथिंग वन शुड बाय. अच्छा, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वेट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ राइडर? सो a very dear friend of mine, Rohan More, runs Japaloop, where they don't allow anybody over, I think, 85 kilos to ride. Okay. They have massive horses. Their horses weigh 500 kilos. Thoroughbred? Not just thoroughbreds. Rohan has gypsy vanners, he has draft horses, but he doesn't allow 85 or 90 kilos, I'm not sure. How much do you weigh?
I now weigh 81 kilos. You ride horses, right? You The do? last time I rode was actually last week, but I'm still overweight, I'd say. For something this size, I'm definitely overweight. I'd be okay for something like Jasper. But it's the egg and the chicken, you know. I want to lose weight, so I ride, but because I'm too heavy, I can't ride, so therefore I won't lose weight. So it's a cyclical problem. आप जो है अभी भी जजिंग करते हो कई जी, शोज की, राइट? जी। कितने शोज आपने जज किए अब तक के? बहुत सारे किए, 6-7 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तमिलनाडु किए है, महाराष्ट्र में कई सारे शोज किए हैं। व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड? आपका दिमाग कैसा रहता है जब आप बैठे हो और इतने सारे कंटेस्टेंट हैं सामने? हाउ डू यू गो प्रिपेयर्ड? एंड सेकंड, व्हाट डू यू जज अ हॉर्स ऑन? That's a very vast topic, Fahad bhai. I'll try and crystallize it as much as possible. Number one, I believe in judging horses objectively. अब हिंदी में अगर मैं कहने जाऊँ, इसका बाप कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका हैंडलर कौन है, फलाना ढिमकाना, इसका इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो सामने है उसे जज करो। दूसरी चीज़, मेरे जजिंग का सिस्टम है, मैं नीचे से जज करता हूँ घोड़ा जब मैं जज करता हूँ। अच्छा। यू ऑलवेज स्टार्ट, देखो मारवाड़ी के रिंग में थरबरेड तो कोई लाएगा नहीं, ऑब्वियसली कान तो मिलने गए या क्लोज टू मिलने को हो गए, तभी उन्होंने लाया है, वो लास्ट में देखेंगे। तो पहले हूफ देखेंगे। आई स्टार्ट विद द हूव्स, आई देन मूव अप। So what do you look for now? So in the hoof, if you look at this horse's hoofs, he's got a decent heel, he's got a well-rounded hoof. You look at the front, he's balanced on his feet, as we call it. On his hooves, he's a well-balanced animal. This distance isn't drastically large. The pastern isn't bending. You see, this is a small distance. He's got good bone. There's no swelling. There's no water. You're going up to the shoulders. Forearms are pretty solid. If you look at it, you go up to his shoulder. It's well defined. The angle is good on his shoulder. He's got a decent neck. His sire is well known for throwing excellent necks. He's also a very young horse. So physiologically, you may not want to judge him right now. Now in a ring, when he comes in, you will look for breed characteristics. But the way I look at it is I go from down up. The back legs, you want to look if there's any bog spavins, pani jamna, ras ये chadna. बताओगे आपने क्या? यहाँ for me, पे- these जी, terms so are bog very- spavin जो होता है, मुथरा जिसे कहते हैं, ये पीछे के पैर में आता है। इसको है नहीं, मेरे किसी भी घोड़े को अच्छा, आपको मिलेगा कैसा नहीं। होता है वो? यहाँ पे ऐसे पानी जम जाएगा। वहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये लात फेंकता है करके मैं नजदीक, यहाँ जहाँ मेरी उंगली का है ना शैडो, यहाँ पे पानी जम जाता है। He shows no mercy on you as well? He shows mercy on nobody. He is the terminator. Okay. He will terminate you. और So, जो ऊपर का जो है अभी पुट्ठा- पीछे से आप पुट्ठा अगर देखोगे घोड़े का, so यहाँ से देखिए, उसका टेल सेट अच्छा होना चाहिए। अभी ये थोड़ा कच्चा है बच्चा, इस पे वेट डालना है हमें। थोड़ा सा पुड़े के दीपक तरह, see, he'll naturally lift his tail. You'll see Sarjang. A lot of people in shows, they'll put ginger in the private parts. You don't need to do any of that. If Yeah. you exercise your horses right, you feed them right, they'll naturally show that fizz. You don't have to put ginger and give them shots of anything. अच्छा ऐसा होता है? हाँ, बहुत भाई साहब, करने जाओ, जिंजरिंग कॉमन है। आप अगर रिंग में देखोगे, एज अ जज यू सी इट सो मेनी टाइम्स, एज अ पार्टिसिपेंट वी सी इट सो मेनी टाइम्स। घोड़ा आता है, हर 5 मिनट में लीड डालने को देखता है, तो ऑब्वियस है कि इट इज नॉट नेचुरल। सी, ही इज लिफ्टिंग हिज टेल राइट नाउ। आपके सामने घोड़ा लाया है बाहर। जी जी जी। कई मरतबा ऐसा होता होगा कि भाई बस खड़े कीजिए यहाँ पे। There's one more horse जो इसी के बराबर स्कोर करता है जी। पहले तो मैं बहुत कम दिखता था, मैं कुछ शोज कवर भी किया हूँ जी। तो एक ही विनर होता था। हाँ जी, अभी है ना? 5 होते हैं। अभी तो ऐसे जैसे सारंगखेड़ा में लास्ट टाइम there were joint winners. I'll tell you the reason behind that, Fahad bhai. So when you judge objectively with points, this is something very important. I would like to touch upon this topic actually. So top 5 के जो घोड़े आपके जीतते हैं, 5 जज है। अब अगर इंडिविजुअली 5 से पूछोगे ना कि फर्स्ट कौन सा चाहिए, तो शायद से 5 अलग अलग घोड़े चुनेंगे। टॉप 5 किसी भी शो में जो घोड़ा आता है, उसमें आधा आधा एक मार्क का डिफरेंस होता है। दे यूजुअली ऑल वेरी गुड हॉर्सेस, बट किसी का प्रेजेंटेशन होगा, किसी का कान थोड़ा सा अच्छा होगा, सो द डिफरेंस इज वेरी मिनिमल। तो उसमें किसी को बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। रही बात टाइज की, तो टाई ब्रेकर के बारे में भी ये डिजिटल में आने लगा है।
अभी पिछले बार सारंगखेड़ा का जो आपने कहा वो Joint थोड़ा winners थे। थोड़ा सा अलग लगा मुझे. आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव शो था, कंपैरेटिव जजिंग चल रही थी. ऑब्जेक्टिवली नहीं जज किया। कंपैरेटिव जजिंग में टाई होना मेरा मानना है नहीं होता है टाई. सो डू यू थिंक प्लीज करने के लिए किया हो? नहीं, अभी मुन्ना दादा जो है नहीं, सारंगखेड़ा के, वो इतने साल से शो कर रहे So हैं. he wouldn't do such a नो, thing. एंड ही बस खुद के जेब से निकाल के शो भराना इतना बड़ा, But जब उन्हें ऐसा जरूरत होता ही नहीं है. ऐसा होता है, why there is no transparency in voting system? नो बट I mean जो जजेस स्कोर कर रहे हैं, let the public see ना भाई, so Fahad क्या bhai, पॉइंट पे क्या स्कोर Fahad दिया है bhai, आप लोगों ने? there are 3 shows now in Maharashtra. The Baramati show, Aklush show, Iowa show, and hopefully there'll be a fourth. I'm not at liberty to talk about it yet, but there'll be a fourth show which will all use digital platforms. ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है आपके लिए, जी, जी। व्यूअर के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हॉर्स ओनर के लिए बढ़ और जाती जो है. बड़े-बड़े शोज हैं नॉर्थ अभी इंडिया तक के, नहीं, उसमें they've नहीं started. होता। They've started. A They've lot of started. Punjab shows are now using the digital platform. It's the future. You can't say that we won't use it because you judge a horse So, objectively. उसमें क्या होता है, आप लोगों पे बहुत प्रेशर आ जाएगा बिल्कुल. कि भाई ये जज ने मेरे घोड़े को ये क्राइटेरिया पे इतना कम पॉइंट सर क्यों मैं दिया? आपको एक चीज बोलूं, अभी यहाँ तो अनोनिमस होता है. हम्म। मेरा तो मानना है नाम लिख के जजिंग करो, वरना जजिंग मत करो. You should be able to stand by your judgment. जैसे प्रोटेस्ट होता है पुष्कर में, मैंने कई मर्तबा देखा, जी. कई घोड़े वाले निराश हो गए थे, जी. and they kept on asking the judge मेरे घोड़े में क्या कम क्या है? कमी है. I'm not sure, probably I was not privy to the conversation. क्या you as a judge, you are responsible to give them feedback कि No भाई sir. यहाँ पर I'll tell you honestly how it works. कोई कमेटी होती है हर एक शो की जो बुलाते हैं जजेस को, तो वो कमेटी का जिम्मा है आंसर्स देना. यू शुड ट्रस्ट योर जजेस इनफ दैट दे विल डू अ गुड जॉब. right. And nobody goes to a show to try and screw anybody over or to make anybody else's horses win. That's not how shows work. And हार जीत होती रहती है. थोड़ा सा क्या होता है फहद भाई, स्पोर्टिंग स्पिरिट में ना हम कम पड़ जाते हैं. ठीक है चलो उसका जीत गया, अगले बार मेरा जीतेगा, उसमें क्या बड़ी बात है. हमें और स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं. हाँ, दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूं, ये कोई आखिरी शो नहीं है और आगे भी शोज हो गए. आप आगे जाइए, Yeah, वो तो देखो. है. You can get disappointed. You have been a judge in quite a few shows. Yep. So being a judge, you have made more friends or enemies? Enemies. Yeah. Definitely enemies. Yeah. बस क्या होता है मैं बोलूँ फहद भाई, इसमें a very senior horseman a couple of years ago, we were sitting on the stage and he was inviting me down to judge. He was saying चलो रिंग चालू होगी, तो उन्होंने कहा चलो नए दुश्मन बनाने. मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में समझ में कि आपको जज कि जज बनना है ये रिंग. Okay. और वैसे ही होता है यार, वो रिंग में था तो बस एंड ऑफ द डे 5 जजों ने आपके घोड़े को मार्क्स नहीं दिए तो आपका घोड़ा खराब हो गया. अगर आपको लगता है तो आपने घोड़े पालने नहीं चाहिए. इफ यू डोंट हैव योर ओन कॉन्फिडेंस दैट आई हैव अ गुड एनिमल, ठीक है चलो ही मे नॉट और शी मे नॉट हैव प्रेजेंटेड दैट डे, कोई बात नहीं, अगले बार देख लेंगे. इज देयर डिसअपॉइंटमेंट? एब्सोल्युटली. बुरा लगता है बॉस, महीना भर मेहनत करके अगर घोड़ा जीतता नहीं, बुरा लगना नॉर्मल सी बात है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज को नाम दोगे, ऑर्गेनाइजर को नाम दोगे, खराब बोलोगे तो जाओ मत. आपको अगर लगता है कि धांधली होने वाली है या ये शो गड़बड़ है, डोंट गो यार, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू गो. बट मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि शोज में फिक्सिंग चलती है, होती होगी, मुझे तो पता नहीं. ठीक है, चलिए. नाम है इसका टर्मिनेटर और है तकरीबन कितना? 22 महीने का. 22 महीने का है. अभी 2 दांत करेगा नहीं, अभी 6-8 महीना नहीं तोड़ेगा दांत. नहीं, ये 30 में. इसकी बहन ने भी थोड़े से लेट दांत किए. बट तो यू विल कीप दीस मेनी हॉर्सेस, क्या बेच भी देते हो आप? नहीं. सो नन ऑफ दीज आर फॉर सेल. अच्छा. No. So this horse is very dear. His sire passed away. अर्बुद था इसका सायर. और मेरे बहुत करीबी दोस्त है. सॉरी, मदर कौन सी साइड की है? मदर अननोन है इसकी. वहाँ सामने खड़ी है, लक्ष्मी नाम की घोड़ी है. वो अभी कवरिंग के लिए आई है. सचिन भाऊ ने उसे यहाँ भेजा. सचिन भाऊ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है. उनका घोड़ा था अर्बुद. पर अर्बुद असल में ऑलमोस्ट हम सबका घोड़ा बन गया था. हमारे ग्रुप के राज सातपुते हो गए, क्षितिज पाचे हो गए, विराज बालवड़कर हो गए, चेतन बालवड़कर हो गए, मैं हूँ. हम सब में ऐसा फीलिंग था कि अर्बुद हमारा घोड़ा है. यू नो दैट फीलिंग ऑफ ओनरशिप. तो अर्बुद का लोग कहते हैं ये फोटो कॉपी है,
तो ये घोड़ा तो मैं नहीं दूंगा जी। हाँ, ये रंग को क्या कहते हैं? कुमेद कुमेद कलर का जी। है। सो इंग्लिश में इसे बे विद ब्लैक पॉइंट्स कहते हैं। उसके चारों पैर अगर आप देखोगे तो काले है, टेल काली है, आयाल काली है, नॉस्ट्रल्स ब्लैक है, ईयर टिप्स उसके काले है पॉइंट्स। सो ही इज अ बे। बिग जैस्पर इज अ स्लाइटली डार्कर बे। इसके पहले जो था वो क्या नाम था उसका? बिग जैस्पर डार्क बे। एंड दिस वन इज दिस वन इज द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल हॉर्स। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अपना जजिंग Thank you. एक्सपीरियंस। इसके अगले वीडियो में कोई और टॉपिक कवर बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।